Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss here chapter number 18, pollution of air and water. In previous class, we started this chapter and we understand what is pollution and what is pollutant, and we also understand what is air pollution. First, we discuss here a short definition about the pollution: contamination of natural resource like air and water by addition of some harmful and toxic substances are called a pollution. Any substance that cause pollution is called a pollutant. ऐसे कोई भी substance है जो environment के जो natural resource है उनको pollute करते हैं are called a pollutant. And next, our topic is air pollution. The contamination of air with harmful unwanted substance like toxic substance and smoke, dust, which have harmful effect on both living and non-living organisms are called air pollution. When living or non-living दोनों पे effect करता है are called air pollution. Okay. Now, okay. The substance which contaminate the air are called air pollutant. ऐसे substance जो air को pollute करते हैं are called air pollutant. Sometimes such substances may come from natural source like smoke and dust arising from forest fire or volcanic eruption. देखो जो ऐसी things हैं या harmful या toxic substance हैं which cause air pollutions are called air pollutant. Okay, air pollutants are two types. First one is natural source and second one is artificial source, means through a human activity. Okay, the natural source are the example of maybe forest fire, maybe volcanic eruptions are there, so cause air pollution. ठीक है, तो natural pollutant के example अगर आपसे पूछेंगे तो you describe a forest fire and volcanic eruption. Okay, and pollutant are also added with the human activity. Human activity के through भी काफी सारे pollutant air में atmosphere में mix किए जाते हैं that cause air pollution. The sources of air pollutant and factories, ये जो sources हैं air को pollutant करने के कहाँ से आते हैं? Factories से, power plants से, automobile exhaust and burning of firewood and dung cakes. Okay, तो ये सब चीजों से जो pollutants हैं वो air में mix होते हैं, atmosphere में mix होते हैं और next they started air pollution. जिससे क्या हो start हो जाएगा air pollution होना start हो जाता है. Activity 18.2 you might have read in the newspaper the respiratory problem among the children rising day by day. बहुत सारे बच्चों में जो respiratory problem है वो day by day increase हो रही because atmosphere is so polluted. Atmospheric air जो है वो बहुत ज़्यादा polluted है, pure नहीं है, तो हम wrong polluted air को अंदर inhale करेंगे, so respiratory problems तो cause होंगी, so that's why respiratory problem increasing day by day. Have you noticed how rapidly the number of vehicles is increasing? Nowadays vehicles number जो vehicles की जो number है वो day by day बहुत ज़्यादा increase हो रहे हैं, है ना? तो that one also a cause of air pollution. Vehicles produce a high level of producing. Vehicles अगर properly पूरे cleaning नहीं हुई है, half क्या कहते हैं हाँ बर्निंग हो रही है फ्यूल्स की, तो दे क्रिएट अ कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस व्हेन जब इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब फ्यूल की इनकम्प्लीट बर्निंग होती है देन कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस. इट इज अ वेरी पॉइजनस गैस. इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. ये क्या करती है, बहुत टॉक्सिक गैस होती है हमारे ब्लड के अंदर, जो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाते हैं उन्हें उन चीजों को मतलब स्टॉप कर देती है. इससे जो ऑक्सीजन है बाइंड होती है हमारे हीमोग्लोबिन से, इट स्टॉप, इट बाइंड विद द कार्बन मोनोऑक्साइड. और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे एनवायरमेंट में रहेंगे तो हमें थोड़ा डिजी में फीलिंग होगी, या हमारी इवन लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं तो हमारी डेथ भी हो सकती है, तो ये डेथ कॉज भी कर सकता है. बुजो रिमेंबर सीइंग द थिक फॉग लाइक एयर इन द एटमॉस्फेयर. बुजो ने देखा कि उनको ना एनवायरमेंट में एक फॉग की लेयर होती है. इवनिंग के टाइम पे भी आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो छत पर जाके अपने एनवायरमेंट को देखना, आपको थोड़ा स्मोकी या फोगी स्ट्रक्चर दिखाई देगा, फोगी टाइप का वो दिखाई देता है, स्पेशली ड्यूरिंग इन विंटर. दिस इज अ स्मोक. इसको क्या बोलते हैं? स्मोक. व्हाट इज स्मोक? विच इज मेड अप ऑफ अ स्मोक एंड फॉग. जो स्मोक और फॉग से मिलकर बनता है दैट इज कॉल्ड अ स्मोक. उसको हम क्या बोलते हैं? स्मोक बोलते हैं.
स्मोक में कंटेन ऑक्साइड ऑफ स्मोक जो होता है उसमें मे बी कंटेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइंड विद अदर एयर पॉल्यूटेंट, जो दूसरे एयर पॉल्यूटेंट से कंबाइन होता है एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक। और इन एयर पॉल्यूटेंट के साथ में मिलकर, फॉग के साथ मिलकर ये क्या प्रोड्यूस कर देता है, क्या फॉर्म करता है, स्मोक प्रोड्यूस करता है। द स्मोक कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ये जो स्मोक होता है इसके रीजन से ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, सच एज अस्थमा, कफ, व्हीजिंग इन चिल्ड्रन। ये सब जो डिजीज है वो हैपन होना लग जाती है, ये सब क्योर होने लग जाता है कि भाई ये चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। मैनी इंडस्ट्रीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के लिए, कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर द मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट, जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं आर मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट है, मे बी सल्फर डाइऑक्साइड, मे बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड is releases in the atmosphere. Sulfur dioxide is produced by combustion of fuel like coal in power plant. It can cause respiratory problems including permanent lung damage. ये क्या कर सकता है, respiratory problems को create कर सकता है including permanent lung damage में कर सकते हैं। You may already studied about the burning of fossil fuel in chapter 5, हम chapter 5 read करेंगे जब देखेंगे जैसे जैसे fossil fuel burn होते हैं they produce a toxic gases and release in the atmosphere, and that's why our lung is damaged and so much respiratory problems is here. और अदर काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक अदर पॉल्यूटेंट है जो एयर में होता है वो कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन शॉर्ट वी here write the CFC, that means chlorofluorocarbon, which are used in refrigerator, air conditioner and aerosol spray। इन सब के अंदर इसका यूज होता है। नाउ डे बाय डे जैसे व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, डे बाय डे एयर कंडीशनर भी इंक्रीज हो रहे हैं ना। पहले के टाइम पे एयर कंडीशनर्स इतने यूज नहीं होते थे, नाउ अ डे ईच एंड एवरी रूम हैव अ सेपरेट एयर कंडीशनर। ओके, तो CFC डैमेज द ओजोन लेयर, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये डैमेज कर रही है किसको, ओजोन लेयर को ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो ओजोन लेयर है उसको धीरे धीरे डैमेज करती जा रही है। रिकॉल द ozone layer protect us from harmful ultraviolet rays, as we all know ozone layer help us to absorb the all ultraviolet rays and prevent it, but ozone layer अगर डैमेज होगी तो ये जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं कम इनटू द अर्थ पर आएंगी। ओके, हैव यू हियर्ड ऑफ द ओजोन होल, आपने कभी भी ओजोन होल के बारे में सुना होगा। ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट, आपने कभी इसके बारे में सोचा है। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFC। अब आजकल इनकी जगह पर कुछ केमिकल्स का यूज करने लग गए जो लेस हार्मफुल होते हैं कंपैरिजन टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। In addition to the above mentioned gases, automobile which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods. They reduce visibility. अब ये डीजल और पेट्रोल से क्या होता है कि जब ये बर्न हो रहे होते हैं तो टाइनी पार्टिकल्स जो है सस्पेंड करते रहते हैं इसमें, एयर में, और ये लंबे टाइम तक जब ये टाइनी पार्टिकल्स एयर में रहते हैं तो ये विजिबिलिटी को कम कर देते हैं। आपने विंटर्स में जब स्मोक होता है तो आपने देखा होगा विजिबिलिटी बहुत खत्म हो जाती है, आपने अपने को 1 और 2 मीटर का भी दिखाई नहीं देता। तो वो रीजन इसीलिए है कि भाई जो इस तरीके के जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो विजिबिलिटी कम करते हैं व्हेन इनहेल्ड दे कॉज, और जब इन्हीं पार्टिकल्स को हम इनहेल कर लेते हैं थ्रू अ गैस सो ये रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करते हैं। सच पार्टिकल्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग। ये जो पार्टिकल्स हैं कब इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, भाई स्टील में मेकिंग हो रहा है या माइनिंग का प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर भी। पावर प्लांट्स गिव आउट टाइनी ऐश पार्टिकल, जो पावर प्लांट्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहां पर भी टाइनी ऐश पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं विच ऑल्सो पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, जो भी एक रीजन है किसका, एयर को पॉल्यूट करने का। ओके, Now, case study the Taj Mahal. Taj Mahal पे case study है ये। Over the past two decades, India most famous tourist attraction, India का जो most attraction point है, it is a Taj Mahal. Taj Mahal located in Agra. Taj Mahal कहाँ पर है, आगरा के अंदर। Have become a matter of concern. Experts have warned that pollutant in air are discoloring its soil. Experts ने वॉर्न किया है कि अगर इसी तरीके से पॉल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज होता रहा, इंडस्ट्रीज इंक्रीज करती रही तो थोड़े टाइम बाद में जो व्हाइट मार्बल है इसका पूरा कलर डिस्कलरिंग हो जाएगा, येलो कलर में चेंज हो जाएगा।
So it is not only living organisms that get affected polluted air, but non-living things like building, monuments and statues also get affected. तो air pollution से respiratory disease हो रही है, visibility कम हो रही है, और भी बहुत सारी problems जो हो रही हैं living thing में तो है, उसके साथ में नॉन लिविंग थिंग भी अफेक्ट हो रहा है, जैसे बिल्डिंग्स वेस्ट खराब हो रही हैं, मॉन्यूमेंट्स वेस्ट हो रहे हैं, स्टैचूज जो हैं वो खराब हो रही हैं, सब चीजें अफेक्टेड हो रही हैं. दीज इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा लाइक रबर. जो आगरा के अंदर आप देखेंगे कि रबर प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है, ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्रीज हैं, केमिकल फैक्ट्रीज हैं, एंड स्पेशली द मथुरा ऑयल, यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है ताजमहल के नियर पर, has been responsible for producing pollutant. ये सब फैक्ट्रीज रेस्पॉन्सिबल हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करने के लिए. These gases mix with the water and produce a sulfuric acid and nitric acid. Okay, so these gases react with the water vapor present in the atmosphere. ये जो gases हैं react करती है किससे, water vapor से, जो then जो atmosphere के अंदर present है, एक बेका sulfuric acid and nitric acid. The acid drop down with the rain. ये जो acid है drop down होता है किसके through, rain के through, and the acid rain drop down the rain making the rain acidic. जो rain को क्या कर देती है, acidic बना देती है. This is called a acid rain. इसी को हम क्या बोलते हैं, acid rain बोलते हैं, कि भाई ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, जो एनवायरमेंट में है, ये रेन के थ्रू नीचे की तरफ आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड एसिड रेन. इसी को, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एसिड रेन. एसिड रेन करेक्ट द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट. द फिनोमिना इज आल्सो कॉल्ड द मार्बल कैंसर. ये जो पूरा प्रोसीजर है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड के कारण एसिड रेन हो रही है. दैट्स व्हाई जो हमारा मार्बल है वो खराब हो रहा है, तो उसको एक टर्म यूज किया गया है, मार्बल कैंसर. तो मार्बल को पूरा डिस्ट्रॉय करता जा रहा है. Okay, suspended particulate matter such as the soot particle emitted by a Mathura oil refineries has contributed toward the yellowing of the marble. ये जो Mathura oil refinery, इससे भी जो चीजें रिलीज होती है ना, ये सबसे मोस्ट रीजन है yellowing part of the marble, मार्बल को येलो करने का. ठीक है, and the Supreme Court has taken several steps to save the Taj. सुप्रीम कोर्ट ने अब काफी सारे स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कहा है, किस लिए, ताज को सेव करने के लिए. इट हैज, दिस इज द ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स ताजमहल. ओके, ऑर्डर इंडस्ट्रीज टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल लाइक सीएनजी एंड एलपीजी. वो उनको कहा गया है कि वो जो भी इंडस्ट्री के अंदर जो भी फ्यूल यूज कर रहे हैं, वो क्लीनर फ्यूल यूज कीजिए, जस्ट लाइक सीएनजी एंड एलपीजी. देखिए सीएनजी और एलपीजी जो फ्यूल्स हैं, they do not produce any type of pollutant. The pollutant carbon monoxide means maybe carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, इस टाइप की चीजों को नहीं रिलीज करते. That's why we said these are the cleaner fuel. So here maybe one question is here, what is a cleaner fuel? Example of two. First one is CNG and second one is LPG. CNG's full form is compressed natural gas, compressed natural gas. Okay, and LPG, liquefied petroleum gas, liquefied petroleum gas. Moreover, the automobile should switch over to unleaded petrol in the Taj zone. Discuss with your elders and what they have to say about the condition of Taj Mahal 20 to 30 years. आप इसके रिगार्डिंग अपने बड़ों से बात करें कि 20 और 30 सालों में, 20 एंड 30 के इयर्स के बिटवीन में ताजमहल में की कंडीशंस में क्या क्या चेंजेस आए. ट्राई टू प्रोक्यूर अ पिक्चर ऑफ ताजमहल फ्रॉम योर स्क्रैप बुक. आप कोशिश करें इसकी स्क्रैप बुक में आप अपनी पिक्चर भी लगाएं. I am reminded of the chapter on crop. I wonder whether acid rain affect the soil and plant also. हमने इन चैप्टर फर्स्ट के अंदर भी रीड किया था भाई, एसिड रेन जो है ताजमहल को तो वेस्ट कर ही रही है, ताजमहल को तो अफेक्ट कर ही रही है. ओके, बट इट आल्सो अफेक्ट बाय अदर सॉइल एंड प्लांट आल्सो. ये सॉइल को भी अफेक्ट करती है एंड प्लांट्स को भी अफेक्ट करती है, एंड एनिमल्स. और यही एसिड रेन जो वाटर के थ्रू एक्वेटिक लाइफ में जाएगा, तो वहाँ की जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको अफेक्ट करेगा. ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस एसिड रेन. Now we move to a next and very important point of this chapter is greenhouse effect.
You know that the sun ray warm at the earth surface. जो earth surface है उसको warm करने का काम क्या होता है? sun rays के कारण होता है. A part of radiation that fall on the earth is absorbed by it. तो जो earth है वो काफी सारा जो इन radiation का part है उसको क्या करती है? absorb करती है and most of the part को reflect back कर देती है वापस space के अंदर. Okay. A part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere. ये जो reflected radiation है, वे सनरेज आई अर्थ पे आई, काफी अर्थ ने एब्जॉर्ब की एंड बाकी को रिफ्लेक्ट कर दिया. ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस होती हैं ये ट्रैप्ड हो जाती है एटमॉस्फेयर एयर के थ्रू. ठीक है. द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ. इस ट्रैप्ड रेडिएशन के कारण क्या होता है? हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो वार्म होने लग जाता है, मतलब पहले के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म हो जाता है. इफ यू हैव सीन अ ग्रीन हाउस इन अ नर्सरी और एल्सवेयर, आपने कभी ग्रीन हाउस देखा होगा, एक ग्लास का बना हुआ हाउस होता है. ओके. तो नर्सरीज में जैसे कोल्ड एरियाज होते हैं उनके अंदर राजस्थान की कोई क्रॉप को या वार्म कंडीशन में ग्रो होने वाली कोई क्रॉप को ग्रो कराया जाता है, तो एक ग्लास का बना हुआ हाउस होता है जो मेंटेन रखता है अंदर के टेम्परेचर को. उस ग्लास के बने हुए में क्या होता है कि सनरेज अंदर तो आ जाती है लेकिन रिफ्लेक्ट होकर वापस बाहर नहीं जा पाती है. तो दैट्स व्हाई उस ग्लास के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाता है. तो हम कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. तो वहां से बहुत बड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके. तो ग्रीन हाउस इन अ नर्सरी और एल्सवेयर रिकॉल दैट द सन हीट इज अलाउड टू गेट इन बट इज नॉट अलाउड टू गो आउट. वो क्या करता है ग्रीन हाउस, उसमें जो सनरेज है वो अंदर तो आ जाती है लेकिन वापस बाहर नहीं जा सकती है. ठीक है. नॉट अलाउड टू गो आउट. द ट्रैप्ड हीट वार्म द ग्रीन हाउस. तो जो ट्रैप्ड हीट है उस ग्रीन हाउस के अंदर वार्म एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है. द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर इज सिमिलर. ये जस्ट उसी के जैसे काम करता है जैसे हमारा एटमॉस्फेयर इस इन रेडिएशंस को ट्रैप कर लेता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट. Without this process, life would not have been possible on the earth, but now it threatens life. लेकिन अभी वैसे तो इस प्रोसीजर के बिना हम लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब यही प्रोसीजर थ्रेटेंड हो गया लाइफ के लिए क्योंकि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज वन ऑफ द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट. अब टाइम टू टाइम पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है इन एटमॉस्फेयर डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? इन रिफ्लेक्टेड रेस को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है. दैट्स व्हाई जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है. यू नो दैट CO2 इज वन ऑफ द कंपोनेंट यू हैव स्टडीड द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट. आपने कार्बन डाइऑक्साइड का रोल पढ़ा है प्लांट्स के अंदर. दे हेल्प टू इन फोटोसिंथेसिस एंड मेकिंग फूड. बट इफ देयर इज एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर, अगर एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस हो जाएगी, इट एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट. लेकिन वो एक्ट करने लग जाती है किसके लिए? पॉल्यूटेंट के जैसे. कैन यू हेल्प पहेली फाइंड आउट द आंसर ऑफ हर क्वेश्चन? On the one hand, CO2 is continuously being released because of human activity. On the other hand, area in the forest is decreasing. और forest का area क्या हो रहा है? Decrease हो रहा है. पहले तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जितनी रिलीज हो रही, प्लांट्स इतने सारे थे, they absorb it and create in food. But nowadays plants की कंटिन्यूअस कटिंग होती जा रही है. ठीक है. और CO2 तो उतनी क्यों ज्यादा नंबर्स में, क्योंकि इंडस्ट्रीज रीड हुई है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. तो डे बाय डे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन उसको कंज्यूम करने का जो सोर्स है प्लांट्स या ट्रीज है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं. तो दैट्स व्हाई ये एक रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट में इंक्रीज होने का, परसेंटेज इंक्रीज होने का. तो कंटिन्यूअसली रिलीज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. ऑन द अदर हैंड area under forest is decreases. Plant utilize carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis, thereby decreasing the amount of carbon dioxide in the air. Deforestation is lead to increase the amount of deforestation. एक main cause है environment में carbon dioxide की increase होने का, because the number of trees which consume carbon dioxide is reduced. Human activity thus contribute the accumulation of carbon dioxide in the एटमोस्फियर. तो दैट्स व्हाई एक्यूमुलेशन जो है डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है इन एटमोस्फियर. CO2 ट्रैप हीट एंड डज नॉट अलाउ टू एस्केप इनटू द स्पेस. CO2 क्या करती है? इस पूरी हीट को
एब्जॉर्ब कर लेती है एंड अलाउ नहीं होने देती है, कहाँ पर एस्केप नहीं होने देती है, कहाँ स्पेस के अंदर. Okay, so that's the result. The average temperature of the Earth atmosphere gradually increases day by day. जो Earth temperature है it increases gradually. This is called the global warming. And now our class is very important. We discuss here three most important points in today class. First is what is acid rain, and second one is what is greenhouse effect, and third one is global warming. Okay, what is greenhouse gases and how it is happen, we discuss in a next class. Okay.